Welcome student to my YouTube channel Bharat Chem Study. Today we are going to study about chapter coordination compound for plus 2 class. In this video part 4 we are going to study about stereoisomerism and its types with examples. So let's start with the topic stereoisomerism. The isomers which differ on account of different positions and arrangements of ligands, atoms or group in space around the central metal ion are called stereoisomers, and the phenomena is called stereoisomerism. These are of two types. The first is geometrical isomerism. The isomers having same molecular formula but differ in geometrical arrangement of atoms or groups around central metal ion are called geometrical isomers, and the phenomena is called geometrical isomerism. Note, if similar pairs of ligands occupy adjacent positions, then cis isomer is formed. But if similar pair of ligands occupy positions opposite to each other, then trans isomer is formed. Geometrical isomerism in coordination complexes with coordination number 4. Complexes having coordination number 4 adopt two types of geometry, tetrahedral and square planar geometry. But geometrical isomerism is not possible in tetrahedral complexes because in tetrahedral geometry all the positions of ligands are adjacent to one another in these complexes and no position opposite to each other is coming. Therefore, the complexes with coordination number 4 and tetrahedral geometry will not show geometrical isomerism. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमारी स्टडी में दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात आती है। पहले वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दूसरे वो कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दो टाइप में पढ़ेंगे। दैट मीन उन कॉम्प्लेक्सेस में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उन कॉम्प्लेक्सेस में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो दो टाइप की ज्योमेट्री देते हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनर। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर सारी पोजीशन एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं, इसीलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। सिर्फ वो कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एंड ज्योमेट्री स्क्वायर प्लैनर है वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं geometrical isomerism in complexes with coordination number 4 and geometry square planar. So the geometrical isomerism in complexes of coordination number 4 and having geometry square planar, the square planar geometry can be shown like this: the metal atom in the center and there are 4 ligands present like this. So to understand the geometrical isomerism in complexes having square planar geometry and coordination number 4, let's number these positions as 1, 2, 3 and 4. This is a square planar geometry, and if similar group or ions are present at position number 1, 2, 2, 3, 1, 4 and 3, 4, then this is called cis isomer. सिंपल सेंस में हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर प्लैनर केस के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं तो हमारे सेम टाइप ऑफ लिगेंड कभी भी डायगोनली नहीं आने चाहिए, यानी कि ऐसे पोजीशन में एक दूसरे के डायगोनल में आमने सामने नहीं आने चाहिए। चाहे 1, 3 में चाहे 1, 2, 4 में अगर डायगोनली नहीं आते, सेम वाले कहीं भी रहते हैं तो ज्योमेट्री कहलाएगी सिस आइसोमर। फॉर एग्जांपल, in this complex there are two types of same ligand, ammonia is present twice and chlorine is present twice. So इस केस में अगर हम स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने जा रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि दो क्लोरीन एक दूसरे के डायगोनली नहीं आने चाहिए और दोनों अमोनिया एक दूसरे के डायगोनली नहीं आने चाहिए, तभी वो पोजीशन हमारी सिस फॉर्म कहलाएगी। सो हियर हमने क्लोरीन को इधर रख दिया ताकि ये डायगोनली ना आ पाए और अमोनिया और अमोनिया को इधर रख दिया ताकि ये डायगोनली ना आ पाए। और दूसरी सब में कह सकते हैं कि यहाँ पे सेम जो लिगेंड है वो 1, 2 पोजीशन पे है एंड 3, 4 पोजीशन में है, इसीलिए सिस फॉर्म है। बट अगर दो सेम टाइप के लिगेंड या सेम आयंस एक दूसरे के डायगोनली आ गए, यानी कि पोजीशन 1, 3 पे या 3, 4 पे आमने सामने आ गए, तो आइसोमर होगा ट्रांस आइसोमर।
सो अगर हम इसी कॉम्प्लेक्स का ट्रांस आइसोमर बना रहे हैं तो हमें सेम वाले लिगेंड को एक दूसरे के डायगोनली रखना है। सो सी हियर क्लोरीन एंड क्लोरीन एक दूसरे के डायगोनली आ गए एंड अमोनिया और अमोनिया एक दूसरे के डायगोनली आ गए, इसलिए ये फॉर्म ट्रांसफॉर्म। तो इसे याद रखने का एक सिंपल मेथड आप याद कर लीजिए कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसका की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एंड ज्योमेट्री स्केल प्लानर है, अगर दो सेम लिगेंड एक दूसरे के डायगोनली आ गए तो पोजीशन ट्रांसफॉर्म होगी, और अगर सेम वाले लिगेंड एक दूसरे के डायगोनल नहीं आते, कोई भी और पोजीशन लाई करते पर एक दूसरे के डायगोनल नहीं करते, तो फॉर्म हमेशा सिस फॉर्म होगी। नाउ फॉर द स्केल प्लानर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma2B, यहाँ पे Ma2 लिखने का मतलब कि A की लिगेंड दो बार पड़ा है, B और C अलग अलग लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल PTCl NH3 ट्वाइस NO2, इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया दो है जबकि क्लोरीन एंड NO2 दो अलग अलग लिगेंड है। तो इस केस में अगेन सिस फॉर्म बनाने के लिए हमें दो लिगेंड्स को, जो दो सेम लिगेंड है, उनको डायगोनली नहीं रखना है कभी भी, तो फॉर्म सिस होगी। और अगर हमें ट्रांसफॉर्म बनानी है तो हमें इन सेम वाले लिगेंड को यानी कि दोनों अमोनिया को एक दूसरे में डायगोनल रखना है, तो पोजीशन ट्रांस बन जाएगी। इस केस में मैंने दोनों अमोनिया को एक दूसरे के डायगोनल नहीं रखा, कहीं भी रखा पर एक दूसरे के डायगोनल नहीं रखा, इसलिए ये सिस फॉर्म है। और अगर मैंने अमोनिया को एक दूसरे के डायगोनल रख दिया तो वो क्या है, ट्रांसफॉर्म। So here ammonia is present diagonally to each other, therefore it is called the transform. एक बात आपने बहुत हमेशा याद रखनी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर देने के लिए एक शर्त है, एक रूल है कि उसके अंदर कम से कम एक ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो दो बार पड़ा है, यानी दो सेम लिगेंड होने जरूरी है, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगा। Now we are going to study about the geometrical isomerism in complexes with coordination number 6. तो जिन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल लाइक दिस। इसमें भी पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिस और ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का भी इजीएस्ट मेथड हम कर लेते हैं कि अगर हमें सिस फॉर्म बनानी है तो हमें दो सेम आयंस को और दो सेम लिगेंड्स को अगर हम 1 2 पोजीशन पे रख लेंगे तब वो फॉर्म हमेशा सिस फॉर्म होगी। लेकिन अगर हम दो सिमिलर या सेम लिगेंड्स को 1 और 6 पोजीशन पर रखेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर और नीचे रखेंगे, तब पोजीशन हमेशा ट्रांसफॉर्म होगी। दैट इज अ सिंपल रूल वी लर्न विद प्रैक्टिस। इसके अलावा नो मैटर वेयर द अदर ग्रुप्स आर प्लेस्ड, let's understand this with few examples. First, octahedral complexes of the type Ma4B2. Here M is metal atom, A4 means one ligand is present 4 times and B2 means another ligand is present twice. For example, CrCl2 NH3 4. Here ammonia is present 4 times and chlorine is present 2 times and whole complex is having positive 1 charge. Here Cl is present twice, so we will place chlorine at position 1 to make cis form. तो यहाँ पे क्लोरीन दो बार है, इसीलिए सिस फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा सेम दो एटम्स हैं उनको रखेंगे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, बाकी एटम आप कहीं भी प्लेस कर दीजिए, तब आपकी फॉर्म कहलाएगी सिस फॉर्म लाइक दिस। एंड बिकॉज कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है इसीलिए हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रैकेट साइड में लगा के उस पे पॉजिटिव चार्ज है। और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही दो क्लोरीन एटम को एक दूसरे के सामने रख देंगे, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, दैट इज फर्स्ट और सिक्स पोजीशन पे, तो ये कहलाएगी द ट्रांसफर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। दो सेम एटम्स को यहाँ पे ऊपर और नीचे रख दिया, बाकी एटम कहीं भी प्लेस कर दीजिए, अगर ये दो एटम ऊपर नीचे आ गए सेम वाले तो ये कहलाएगी ट्रांसफॉर्म। तो सिंपल रूल क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो दो लिगेंड सेम है उनको अगर हम 1 2 पोजीशन पे रख देंगे तो कहलाएगी सिस फॉर्म, और अगर उनको एक दूसरे के आमने सामने रख देंगे तब पोजीशन कहलाएगी ट्रांसफॉर्म। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप Ma3B3, एग्जांपल CrHCl3 NH3 थ्राइस। तो Ma3 का मतलब एक लिगेंड 3 बार है और B3 का मतलब दूसरा टाइप का लिगेंड भी 3 बार है। जिस तरह से इस गिवन कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन 3 बार है, अमोनिया 3 बार है,
तो हमने इन दोनों में से कोई एक लेना, चाहे हम क्लोरीन को मान के चले सिस के लिए या अमोनिया को मान के चले। अगर हम क्लोरीन को मान के चलते हैं तब हमें क्या करना है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को क्लोरीन को रख देते हैं तो याद रखिएगा सिस फॉर्म बनाने के लिए क्लोरीन इस सिक्स पोजीशन पे कभी नहीं रखना, वरना ट्रांसफॉर्म के साथ में मिक्स कर जाएगा। तो सिस फॉर्म बनाने के लिए अगर क्लोरीन हमने सेम वाला लिगेंड हमने फर्स्ट और टू पोजीशन पे रखा है तो थर्ड एटम सिक्स पोजीशन पर नहीं आना चाहिए, कहीं भी रख दीजिए पर सिक्स पोजीशन में मत रखिए सिक्स फॉर्म बनाने के लिए। तो हमने इस केस में क्लोरीन यहाँ रख दिया, हमने इसे सिक्स पोजीशन पे यानी कि दूसरे क्लोरीन के बिल्कुल नीचे नहीं आने दिया, तब ये फॉर्म कहलाएगी सिक्स फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हम क्लोरीन को ऊपर और नीचे यानी वन फर्स्ट और सिक्स पोजीशन पर रखेंगे, और ऐसा करते वक्त क्लोरीन को सेकंड पोजीशन पे नहीं रखना, क्लोरीन कहीं भी और आ जाए सेकंड पोजीशन पे ना आए, तो हमारी फॉर्म कहलाएगी ट्रांसफॉर्म। तो ये सिंपल मेथड है, सेम है। अब यहाँ पे हमने क्लोरीन को सिस और ट्रांस बनाने के लिए यूज किया, हम अमोनिया को भी इस तरह रख सकते हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो अमोनिया के बेस पे सिस और ट्रांस बनाने के लिए हमने अमोनिया को रखा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, और इसे रखते वक्त हमने ये ध्यान दिया सिक्स पोजीशन पे हमारा अमोनिया ना आए, हमने वहां क्लोरीन रख दिया, तब ये कहलाएगी सिस फॉर्म। और इसी के ट्रांसफॉर्म बनाते वक्त हमने ये ध्यान रखा कि अगर हमने फर्स्ट और सिक्स पोजीशन अमोनिया रखा है तो सेकंड पोजीशन पे हमने अमोनिया को हटा दिया, वहां अमोनिया नहीं आना चाहिए। दिस इज द ट्रांसफॉर्म व्हेन वी टेकिंग अमोनिया एट वन और सिक्स पोजीशन। फिर एक बार पढ़ लेते हैं, जब तीन लिगेंड सेम तरह के हैं तो उस केस में अगर हमने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे सेम लिगेंड रखा है तो उसकी थर्ड सिक्स पोजीशन पे सेम लिगेंड नहीं आना चाहिए, तभी वो सिस फॉर्म बनेगी। और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमने सेम लिगेंड को वन और सिक्स में रखा है तो सेकंड पोजीशन पे आपका वो वाला लिगेंड दोबारा नहीं आना चाहिए, तभी वो ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। नाउ ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MeA2B2, यहाँ पे M हमारा मेटल एटम होगा, A2 का मतलब कि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें दोनों डोनर एटम सेम टाइप के हैं। B2 डिफरेंट लिगेंड है जो कि दो बार पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल COEN2Cl2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे En दो बार पड़ा है और En में दोनों डोनर एटम सेम होते हैं, दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन होते हैं, और Cl2 भी दो बार पड़ा हुआ है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान करने वाली है कि इस कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट बहुत बार गलती करते हैं, वो इसको रीड करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, but this complex is having coordination number 6 because En is a bidentate ligand. So एक En दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए दो En 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और दो क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसलिए टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, 4 नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, तो इस बात पे बहुत ध्यान रखना। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बिकॉज En बाइडेंटेट लिगेंड है और दो बार पड़ा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हियर यहाँ पे इस केस में क्लोरीन दो बार है, हम क्लोरीन को यूज करेंगे टू डिसाइड सिस एंड ट्रांसफॉर्म। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब हम Cl को यानी क्लोरीन को पोजीशन रखेंगे फर्स्ट पे और सेकंड पे। अब En बनाने के लिए बिकॉज En बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये दो पोजीशन ऑक्युपाई करेगा एक साथ, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, दो पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे और वहां पे En लिख देंगे। ये दो पोजीशन ऑक्युपाई हो गई, अब रिमेनिंग दो पोजीशन ये रह गई है, तो यहाँ पे भी En आएगा, दोनों का एक ही डोनर एटम यहाँ डोनेट करेगा, एक डोनर एटम यहाँ लगेगा, so we will represent like this. This is the cis form, and because the complex is having positive charge, therefore we make a bracket और उसके ऊपर हम positive charge लगाते हैं। अब किसी कॉम्प्लेक्स का ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है कि Cl को रख देना है जो सेम वाला है, जो दो बार एग्जिस्ट कर रहा है, उसको रख देना है हमने फर्स्ट पे और सिक्स पोजीशन पे, तो हमारे पास ये पोजीशन खाली बच गई, तो यहाँ पे हमारा En आ जाएगा। कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड को हम इस तरह लिख सकते हैं। सेम अगर En की जगह OX हो तो वो भी इसी तरह से बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज OX मतलब ऑक्सलेट, उसमें भी दो ही डोनर एटम होते हैं और वो भी बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो कई बार सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में En की जगह पे OX होता है और उसका स्ट्रक्चर भी यही होगा। Cl की जगह पे दो अमोनिया भी दिए जा सकते हैं, तो उस केस में हम फर्स्ट पोजीशन पे अगर दो अमोनिया रखेंगे तो सिस फॉर्म होगी, और फर्स्ट और सिक्स पोजीशन पे अगर दो अमोनिया रखेंगे तो ट्रांसफॉर्म होगी।
नाउ नेक्स्ट टाइप इज ऑक्टेंडल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MAA2BC, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड दो बार है और BC का मतलब दो अलग अलग लिगेंड है। फॉर एग्जांपल इन COEN twice ClNH3। अगेन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बिकॉज EN हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, ये दो बार पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे Cl दो बार नहीं है, अमोनिया दो बार नहीं है, इसका मतलब Cl और अमोनिया ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सिस फॉर्म कौन सी होगी, ट्रांसफॉर्म कौन सी होगी। तो यहाँ पे हमारा EN विल डिसाइड कि सिस फॉर्म कौन सी होगी और ट्रांसफॉर्म कौन सी होगी। तो हमें ये याद रखना है कि अगर EN जिस तरह से पहले बनाए थे एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आ गए तो ट्रांसफॉर्म है, और अगर ऑपोजिट नहीं आए कहीं भी पड़े हैं तो वो फॉर्म सिस फॉर्म है। इस केस के लिए हमने क्या करना है, हमने पहले ऑक्टेंडल ज्योमेट्री बनानी है और इस केस में हमारा EN डिसाइड करेगा। तो हमने Cl और अमोनिया यही रख दिए फर्स्ट और 2 पोजीशन पे, और EN हमारे एक दूसरे के सामने नहीं आए इसलिए सिस फॉर्म है। एंड बिकॉज डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज तो हमने यहाँ छोटी तरफ लगा के पॉजिटिव चार्ज लिखना है, ये हमेशा याद रखिएगा। और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है, EN को एक दूसरे के सामने रख देना है। तो यहाँ EN डिसाइड कर रहा है कि सिस फॉर्म कौन सी और ट्रांसफॉर्म कौन सी है। अगर EN एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं इस तरह से तो ट्रांसफॉर्म है, और अगर EN एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं तो सिस फॉर्म है। इस केस में इस स्ट्रक्चर की यानी बहुत सारी सिस फॉर्म बन सकती है, पर शर्त है कि EN एक दूसरे के सामने ना आए। सिस फॉर्म की बहुत सारी स्ट्रक्चर बन सकती है और ट्रांसफॉर्म की एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है व्हेन EN आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। सो और पॉसिबल स्ट्रक्चर सिस फॉर्म के जो बन सकते हैं वो भी दिखा देते हैं। तो सिस फॉर्म इस वाले कॉम्प्लेक्स की हम इस तरह दिखा सकते हैं, EN को एक दूसरे के सामने नहीं रखना है। सिस फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स की इस तरह भी बन सकती है, पर ट्रांसफॉर्म को भी नहीं। Not octahedral complexes of the type MA6 and MA5B would not show geometrical isomerism because उसमें दो सेम लिगेंड नहीं आते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की यही शर्त है कि उसमें कम से कम दो एक जैसे लिगेंड होने जरूरी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म when the same molecular formula represent two compounds which have similar chemical and physical properties but differ in their action towards plane polarized light, then these are called optical isomers and the phenomena is called optical isomerism. So, optical isomerism समझने के लिए हम सिंपल सी बात करते हैं कि अगर हमने किसी कॉम्प्लेक्स के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने हैं तो हम सिंपली उसकी मिरर इमेज बना देंगे, तो वो उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। वैसे तो ऑप्टिकल आइसोमर को डिटेल में समझने के इसके बहुत सारे रूल हैं, पर हमारे +2 के लेवल तक हमें सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाने हैं, इसलिए हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे। सो पहले हम बनाने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma2X2, एग्जांपल COEN2Cl positive 3 charge. This complex show two types of geometrical isomer, cis and transform. But it is interesting to note that the transform does not show optical isomerism because transform has plane of symmetry, that is it can be divided into two equal half. तो हमें याद रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमर बनाते वक्त हमें सिर्फ सिस फॉर्म की मिरर इमेज बनानी है, ट्रांसफॉर्म की मिरर इमेज नहीं बनानी, बिकॉज ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट मींस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो हमारे +2 लेवल तक हमने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमने जब भी में ऑप्टिकल आइसोमर बनाने को कहा जाए किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का विद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो हमने सिर्फ सिस फॉर्म की मिरर इमेज शो कर देनी है। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स की, और बिकॉज इसको क्लोरीन से अगर काटा जाए तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, दैट्स व्हाई द ट्रांसफॉर्म इज नॉट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम इसको यहाँ से भी 2 हाफ में काट सकते हैं और हम यहाँ से भी बिल्कुल दो सेम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बिकॉज ट्रांसफॉर्म जो इस कॉम्प्लेक्स की है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है कहीं से भी, इसीलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते। जबकि सिस फॉर्म के केस में देखा जाए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए हम हमेशा सिस फॉर्म के ही ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे। और उसे बनाने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे डैशेस शो करनी है जो कि हमारे मिरर को रिप्रेजेंट करेगी, और हमने इस सिस फॉर्म का ऑपोजिट यानी इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बना दी। इसकी मिरर इमेज करते हुए Cl हमारा सामने आ गया और EN
we have to just take the mirror image of this complex to write the optical isomer. तो सिंपल सा ये रूल आपको याद रखना है कि अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे तो हमें सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और उसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए हमें सिस फॉर्म की मिरर इमेज इस तरह से शो करते हैं. Now we are going to make the optical isomerism of octahedral complex of the type MAAX2Y2. यहाँ AA का मतलब है ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें दोनों एटम दोनों सेम है. X2 दो बार पड़ा है एंड Y लिगेंड दो बार पड़ा हुआ है. फॉर एग्जांपल CO Cl2 En NH3 twice positive charge. यहाँ अगेन हम ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे. तो हमें पता है इसके लिए हम ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे और दो सेम लिगेंड, चाहे हम क्लोरीन ले लें दोनों सेम है, और जहां हम अमोनिया ले लें, अगर हम सेम लिगेंड को 1 और 2 पोजीशन पे रख देंगे तो हमारी सिस फॉर्म कहलाएगी. और अगर हम सेम लिगेंड्स को इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए हम इसकी सिर्फ मिरर इमेज बना देंगे सिस फॉर्म. अब ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं बना रहे बिकॉज ट्रांसफॉर्म प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसीलिए हम ट्रांसफॉर्म नहीं बनाएंगे. ऑप्टिकल आइसोमर हमेशा हम सिस फॉर्म के बनाएंगे. तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर है गिवन कॉम्प्लेक्स की सिस फॉर्म. अब कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MAA3, इसमें दो फॉर्म नहीं होती, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है बिकॉज इसमें बाइडेंटेड लिगेंड 3 बार पड़ा है, इसका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है. अब क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर हम बना सकते हैं. दैट इज मिरर इमेज एज सच. दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ COA3 having 3 positive charge over H. तो हमारा कंक्लूजन ये है कि अगर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्केल प्लेनर स्ट्रक्चर का सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर बनाने हैं तो अगर हमने सेम लिगेंड को डायगोनली रख दिया तो ट्रांसफॉर्म बनेगी, और अगर सेम लिगेंड डायगोनली नहीं आए तो हमेशा सिस फॉर्म बनेगी. सो ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर हमने सेम लिगेंड को 1 और 2 पोजीशन में रखा तो वो बनेगी सिस फॉर्म, और अगर सेम लिगेंड को हमने 1 और 6 पोजीशन में रखा तब सेकंड पोजीशन पे सेम एटम नहीं रखा तो उस केस में बनेगी हमें ट्रांसफॉर्म. और ऑप्टिकल आइसोमर बनाते वक्त हमें सिर्फ सिस फॉर्म की मिरर इमेज बना देनी है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा हमारी. So this is the conclusion of the topics. Study the geometrical and optical isomers carefully as discussed in this video, and please do written practice. In next video we will study the valence bond theory to explain the geometry and hybridization in a complex. Please like and subscribe the channel for the latest update. Thank you.